Hi students, in the previous lesson, the sun and the wind, we learned about the wind. When there is a heavy rain and wind blows harder, that is called storm. There is also chance of thunder and hail. What will happen when this type of storm comes? So students, today we are going to learn the lesson, the storm in the garden. This is the story of the snail. One day, what happened? See the story. Sunu Sunu the snail was visiting his friends, the ants. They climbed all over him. He. They climbed under him. He. Suddenly, a great white light crashed through the clouds. Sunu Sunu quickly pulled in his head, pulled in his tail, and sat very still. Outside the sky grew dark and the crows flew past. Caw, caw, caw. Oh, but where were the ants? Sunu Sunu stuck out his feelers and looked for them. They were hiding under a flower pot. Go home, Sunu Sunu, the ants cried out. Hurry, your mother will worry. Sunu Sunu went to his mother where she sat under a stone near the well. Amma, said Sunu Sunu, there is a storm in the garden. I heard the wind blow. I saw trees sway. I saw lightning flash. Zack, 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 zack. I heard thunder roll. Ghadam, ghadam. I heard rain fall. Sita, pitta. I heard water drip, drip, plip, 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 plip. It was the biggest storm Sunu Sunu had ever been in. Shy, zack, zack, kadam, sita, pitta, pitta, piff, flip. And do you know what? Sunu Sunu didn't get wet. Do you know why? Summary of the lesson. This lesson is about Sunu Sunu the snail and his ant friends. It talks about how all of them face a big storm when Sunu Sunu had gone to meet the ants in the garden. So students, read the lesson. Now new words. SNAIL snail. Second new word is DARK dark. FEELERS feelers. STORM storm. LIGSTNING lightning. THUNDER thunder. So students, write down these new words in your copy. Now word meanings and example sentences. SNAIL snail. Snail means a small animal with a round shell. Example sentence is snails crawl very slowly. Snails have a spiral shell to cover their body. Second word is dark. With little or no light. Dark means no light. Example, we were having our dinner in a dark room as there was no electricity. I saw a monster in a forest on a dark night. These are the example sentences you have to write in your copy. The word meanings and also the example sentences. Now third word is feelers. An animal organ that is used for tasting things by touch. Example, snail uses its feelers to know which food to eat. Second, ants have tiny feelers to reach towards their food. Next word is storm. A violent weather with strong winds.
Example is, the storm took away the umbrella I was carrying. Second sentence is, the kids got scared with the sound of the storm. Next word is lightning. Lightning means bright flash with thunder. Example sentence, our car got stuck because of lightning. There was a terrible flash of lightning on my birthday. These are the example sentences. Now question 1, who was सुनु सुनु? सुनु सुनु कौन था? तो इसका आंसर आपको लिखना है, who was सुनु सुनु? आंसर इज, सुनु सुनु was a snail. सुनु सुनु एक स्नेल था जिसके राउंड शेल होती है, जिसके बॉडी पे राउंड शेल होती है, बैक पे, दैट इज कॉल्ड स्नेल. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हु वाज सुनु सुनु विजिटिंग? सुनु सुनु किससे मिलने गया था? बताओ बच्चों, किससे मिलने गया था? आंसर इज, सुनु सुनु वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स. सुनु सुनु अपने फ्रेंड से मिलने गया था. जैसे आप जाते हो ना इवनिंग में, अपने फ्रेंड से मिलने जाते हो, उनके साथ खेलते हो, इसी तरह से सुनु सुनु भी अपने फ्रेंड्स के पास गया था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वर द एंट्स हाइडिंग? एंट्स कहाँ पे छुपी हुई थी? तो जब भी ऐसी कोई आवाज़ आती है तो एंट्स कहाँ चली जाती हैं? आपने कभी देखा है? तो वेयर वर द एंट्स हाइडिंग? आंसर इज, द एंट्स वर हाइडिंग अंडर अ फ्लावर पॉट. एंट्स जो थी कहाँ पे छुपी हुई थी? फ्लावर पॉट के नीचे, क्योंकि उनको वो जगह सेफ लगी थी. जब स्टॉर्म आया था तो वो डर गई और वो कहाँ छुपी हुई थी? फ्लावर पॉट के नीचे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड सुनु सुनु गेट वेट? क्या सुनु सुनु भीग गया था? इतना बड़ा स्टॉर्म आया, स्टॉर्म में थंडर भी होता है ना, बहुत रेन भी होती है और हवा भी बहुत तेज चलती है. तो ऐसे इसमें सुनु सुनु क्या भीग गया था? सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट. आंसर इज, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट. क्यों नहीं भीगा था? सोचो बच्चों, सुनु सुनु एक स्नेल था और जैसे रेन आई तो वो उसके अंदर उसने अपने हेड को उसने उसके अंदर छुपा लिया, है ना. आपने देखा है ना, स्नेल के बॉडी बैक पे क्या होती है? शेल होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स? तो स्टूडेंट्स, ये आंसर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो. क्या आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो? तो इसका आंसर, अगर आप जाते हैं तो आप लिख सकते हो इसमें. Yes, I go for morning walks. I go along with my grandparents. अब इस बच्चे ने यहाँ पे लिखा है कि मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ और किसके साथ जाता हूँ? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाता हूँ. तो आप भी इसी तरह से अपना आंसर आप लिख सकते हो. अगर आप पेरेंट्स के साथ जाते हो तो आप लिख सकते हो, I go along with my parents. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर सीन एंट्स इन द गार्डन? क्या आपने कभी गार्डन में एंट्स को देखा है? तो ये भी आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हो. अगर आपने एंट्स को देखा है तो आप लिख दीजिए यहाँ पे. अगर आपने कभी एंट्स को नहीं देखा है गार्डन में तो आप नो लिख दीजिए. तो यहाँ का आंसर हम देखते हैं अभी. Yes, I have seen ants in the garden. They move really fast. Yes, मैंने गार्डन में एंट्स देखी है और वो बहुत तेज़ी से चलती है, बहुत तेज़ी से चलती है, वो एक ही लाइन में चलती रहती है. तो एंट से हमें क्या सीखना चाहिए? एंट से हमें डिसिप्लिन सीखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वॉच एंड सी वेयर दे गो एंड व्हाट दे कैरी टू देयर होल्स. तो आप अगर ऐसे एंट्स आपने देखा है तो उन पे वॉच रखो और देखो कि वो कहाँ जाती हैं. आंसर इज, दे स्टार्ट फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द गार्डन टुवर्ड्स अ स्मॉल होल एट द एंड ऑफ द पार्क. दे कैरी टाइनी लेफ्ट आउट ग्रेन पार्टिकल्स एंड मूव टुवर्ड्स देयर होल्स. तो एंट्स जो हैं अपने माउथ में क्या लेके जाती है? छोटे छोटे पार्टिकल्स, ग्रेन जो अनाज होते हैं उसके पार्टिकल्स लेकर जाती है और अपने होल्स की तरफ जाती हैं. और वो सारी एंट्स एक ही लाइन में जाती है, एकदम डिसिप्लिन में. तो ये आंसर बच्चों आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो. डू यू नो वाई यू सी स्नेल्स एंड अर्थवर्म्स आफ्टर इट रेन्स? सिट इन अ ग्रुप एंड डिस्कस. जब बारिश हो जाती है, रेन होने के बाद बहुत सारे अर्थवर्म्स आपने या स्नेल्स आपने देखे कभी? क्यों आ जाते हो बाहर? इस बारे में ग्रुप डिस्कशन आपको करना है. सोचो ज़रा,
Think about it. Answer is snails and earthworms live deep under the surface of the earth. So whenever it rains, their house gets wet. It is because of which they have to come over the surface on the ground to find place to live and food to eat. उनका घर कहाँ होता है? अंडर द ग्राउंड, डीप होता है। और जैसे बारिश हो जाती है, रेन आ जाती है, तो उनका हाउस जो है गीला हो जाता है। वेट मीन्स गीला हो जाता है और उसकी वजह से वो ऊपर की तरफ आते हैं और आपको इसलिए बहुत सारे अर्थवर्म्स दिखाई देते हैं और स्नेल्स भी आपको दिखाई देती है गार्डन में। और वो ऊपर आके अपने रहने की जगह ढूंढती हैं और खाने के लिए भी चीज़ ढूंढती हैं। Now look at the pictures and complete the sentences. Pick the right word from the box. आपको इसके लिए अपने बुक के अंदर पिक्चर जो दी गई है उनको देखना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ओवर। तो आपको इनके आंसर लिखना है, इनको यूज़ करना है। आपके बुक के पेज नंबर 66 पे आपको ये पिक्चर्स दिखाई देंगी और वहाँ पे आपको ये प्रीपोजिशंस वर्ड जो है फिल करने हैं। तो आपको फर्स्ट पिक्चर में दिखाई दे रहा है, द कैट इज जंपिंग डैश द वॉल। कैट जो है वॉल पे से जंप कर रही है, बट वो वॉल को टच कर रही है क्या? नहीं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द आंसर इज द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल। सेकेंड पिक्चर में आपको कैट दिखाई दे रही है जो डोर के पीछे बैठी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? द कैट इज बिहाइंड द डोर। थर्ड पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है कैट जो है बॉक्स के अंदर है, तो आंसर इज द कैट इज इन द बॉक्स। नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है जो कैट है वो स्टूल के नीचे बैठी हुई है, तो यहाँ पे आंसर आएगा द कैट इज अंडर द स्टूल। फिर आपको दिखाई दे रहा है सूटकेस के ऊपर कैट जो है बैठी हुई है, यहाँ पे वो टच हो रही है सूटकेस से, तो यहाँ पे क्या आएगा? द कैट इज ऑन द सूटकेस। तो ओवर और ऑन में क्या डिफरेंस है? जैसे यहाँ पे दिखाई दिया था कि जब कैट जंप कर रही थी तो वो वॉल के ऊपर से कर रही थी, बट हमने तब ऑन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो बिना टच के वॉल के ऊपर से जंप कर रही थी, इसलिए वहाँ पे आंसर क्या आएगा? द कैट इज जंपिंग ओवर द वॉल। और ऑन कब आएगा? क्योंकि सूटकेस के ऊपर कैट बैठी हुई थी, टच हो रही थी, तो वहाँ पे आंसर क्या आएगा? कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑन। द कैट इज ऑन द सूटकेस। Write down all these, fill in the blanks by using appropriate preposition words by observing these pictures in your textbook. Hope you understand this lesson. Bye bye students. Thank you so much. Thanks for watching.